भाई सारा मतलब ना who he is, I think that's very important. That's what got me here. And what he emphasizes in his film is that living is all about what you get, and life is all about what you give. And it's important to give it back to the society, give it back. When I say give it back, I don't mean it in a vengeful manner, but give it back as in it's almost like a return gift. I always admire people who are talented. I admire people who have the courage and the guts to do something different. I first and foremost, I must also congratulate you for making such a beautiful film, though I have yet to see the film, but the premise of the film is so beautiful. I'm sure the film is going to be a lot more beautiful than I imagined. And the fact that it has already won several awards across the world, and also the Berlin Film Festival, is it? Nominated and things like that. So I'm happy. I turned director last year. I made my debut film, Heartless. You have to have, as I said, a lot of heart to make a film. Especially if you're not a seasoned filmmaker, especially if you don't have producers backing you up and you believe in what you want to say. So for that, Shiroz deserves a huge round of applause. So if you can just... I think we all need that encouragement when we are beginning, when we are starting out. When people are looking at you with so much of the subject as a director, you would always can I also call Imtiaz Bhai and Zara on stage, please? Zara, please. Imtiaz and share it as much as possible. Please support Bakar and his new team. Wish them the very best by making sure that there are enough viewerships on YouTube. God bless you. All the best. Thank you everybody for coming here. Can I request Shiroz Bhai to give Shekhar ji a token of appreciation, please? I gave it really bad. whichever way you give it. I know. Yeah, Just and you don't accept it if there have been some life experiences in your life. If you can narrate some instance where you have given it up and done it about. Yes, there have been so many instances where I think जब आप कोई नेकी का काम करते हैं उसकी गरिमा तभी बनी रहती है जब आप उसके बारे में बात नहीं करते। I think I do understand, but ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी को दिया या किसी को मदद की। I think all of us in our own sweet way we help people as and when we, and actors are an emotional lot और हम लोगों को तो जब भी मौका मिलता है we like to give, we want to give, and especially after this film you would like to give a lot more than you have been giving, as all of us, and this is something, and this is the message that should go across to everyone from all of us on behalf of the entire world and the universe, that you do good and goodness comes back to you in a much bigger way. So, and it's not to get back that you give because you want to give. It comes straight from the heart. आप इसलिए नहीं देते हैं ये सोचिए खुदा मुझे ज़्यादा दे, वो फिर खुदगर्जी हो जाती है। आप इसलिए देते हैं कि आप क्योंकि एक नेक इंसान है और वो नेकी हम सब में होनी चाहिए, और वो बात भले ही खुदा में दे न दे, इस जन्म में दे बाद में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने किसी की जिंदगी को संवारा या किसी
किसी की मदद की या किसी के दुखते दिल को पर हाथ रखा, किसी की पीठ थपथपाई, किसी को stand that to the position that we are in. ये कैसी लगी फिल्म, कितना प्रभावित हुआ इस फिल्म? बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट फिल्म थी, इसलिए मैं शॉर्ट नोटिस में आ गया। जब भी कोई अच्छा काम करता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें, उसे सपोर्ट करें। सपोर्ट को सबको ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे एक नए डायरेक्टर को हमारी इंडस्ट्री में एक खड़े होने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जब मैंने इस फिल्म का प्रेमाइस सुना, जो आधार है जिस पर ये फिल्म बनाई गई है, जो असास है इस फिल्म की, उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत ही नेक ख्याल से इन्होंने ये फिल्म बनाई है कि द मैजिक ऑफ गिविंग। ये हम आज उस दौर में पहुंच गए हैं जहां सबको लेने में बहुत मज़ा आता है। ये मुझे दो, गिफ्ट दो, पैसे दो, घर दो, ज़मीन दो। देने का किसी के पास वक्त नहीं है, देने का किसी के पास सोच नहीं है, देने की किसी की मंशा नहीं है। ऐसे वक्त में इंसान ने इतना खूबसूरत सोचा, और उस फिल्म को देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ और पूरे पुख्ता तरीके से कह सकता हूँ कि बहुत सारे दिल बदलेंगे, और जो अब तक नहीं देते आए हैं वो भी अब लोगों की मदद करेंगे और देना शुरू करेंगे। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और मैं इनको ढेरों बधाई देना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह का, फिल्म इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन वेरी इमोशनल, एज जी, यू सेड आल्सो। जी। कभी भी किसी तरह की भी कोई मुसीबत आई हो या किसी को हेल्प करना है तो जी, ऑलवेज। ये बड़ी ताकत है हमारी इंडस्ट्री में, जिसको लोग एक बहुत सतही तौर पे कभी कभी देखते हैं कि ये इंडस्ट्री सिर्फ एक ग्लैमर की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, पैसे वालों की दुनिया है, शोहरत वालों की दुनिया है। लेकिन इस दुनिया के पीछे ऐसे ऐसे दिल हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। वो दिल जो हमेशा दूसरों के लिए धड़कते हैं, वो दिल जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इंडस्ट्री में, न सिर्फ इंडस्ट्री में जब भी कोई आपदा आई, बल्कि बाहर भी जब भी कोई मुसीबत या दिक्कत आई, हमेशा इंडस्ट्री वाले सबसे पहले साथ आते हैं और साथ मिलके किसी की मदद करते हैं। तो उस इंडस्ट्री को सलाम। और मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में बहुत दिया होगा, इसलिए मुझे ये मिला है कि मुझे एक एक्टर के रूप में एक ज़िंदगी मिली है, एक अभिनेता के रूप में ज़िंदगी मिली है। तो दैट्स द मैजिक ऑफ गिविंग। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि नेकी कर जो दरिया में डालेंगे अभी, तो वही तूफान में कश्तियाँ बनकर कभी साथ देंगी आपका कभी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेकी कर दरिया में डालें। ये न सोचिए कि मैं अब ये दे रहा हूँ, मुझे ये मिलेगा या मिलना चाहिए। जो आपने करके डाल दिया, खुदा आपको देगा। ना भी दे तो कोई बात नहीं, आपको इस बात की खुशी। देखिए, दूसरों की मदद करने से, दूसरों की हेल्प करने से जो उसके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वही आपकी ज़िंदगी का सरमाया है। उसी से ज़िंदगी आगे बढ़ती। पैसा, दौलत, शोहरत बहुत लोगों के पास है। वो खुशी, वो संतोष, वो रूहानी संतोष, वो बहुत ज़रूरी है। सो द मैजिक ऑफ गिविंग इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड फीलिंग कंटेंट एंड फीलिंग हैप्पी। जी, It's called the art of giving also. the art of giving, yes. Art of living is actually the art of giving. Unless you don't give, you won't live. So the art of giving is the art of living. तो आप यहाँ पर जो आज हाजिर हुए हो, जी। that is also one way of Absolutely. मैं इनको जानता नहीं था, मैं इनको पहचानता भी नहीं हूँ, पर मुझे किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी फिल्म है और वो चाहते हैं कि आप आएँ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर मेरे आने से इनको खुशी मिल सकती है, वो सपोर्ट मिल सकता है, तो क्यों नहीं। सो आई फेल्ट रियली हैप्पी। हालांकि मुझे कहीं और भी जाना था, लेकिन मुझे लगा कि इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। I have just directed a film, Heartless, जो अभी कलर्स पे आई भी इस संडे को। It's called Heartless, that film. हाँ, so I'm coming to that. और उसके बाद I just needed a break because it takes time to write another script. So I'm working on another script called Bombay Dying. I think कि सिर्फ इंसान ही नहीं मरता, कभी कभी शहर भी मर जाता है। जो शहर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किसी वजहों से जो शहर की जो खूबसूरती है, जो शहर का जो रूह है, वो मर जाता है। सो बॉम्बे डाइंग वो एक्चुअली दरअसल एक ऐसे कपल की कहानी, हिंदू मुस्लिम, जो इट्स सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 1993 राइट्स, जिसमें इनको प्यार होता, जो दिक्कतें आती हैं और किस तरह से वो शहर फिर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे मर रहा है। और जो भी घटनाएं यहाँ पर हुई, चाहे ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 26/11 हुआ, रेप हुए, और ये शहर जहाँ रात में आदमी और लड़कियाँ जो है बेबाकी से निकला करती थी, अब वो शहर थोड़ा थोड़ा सहमा सा रहने लगा। बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई जो बम्बई शहर में पहले नहीं हुई थी, जो अब मुंबई है। तो शहर का नाम भी बदल गया।
तो बहुत सारे इस पे ये बदलाव इस शहर ने देखा. समवेयर आई फेल्ट कि ये जो शहर मर रहा है उसको ज़िंदा रखने की भी ज़रूरत है, और उस वजह से मैं ये फिल्म बना रहा हूँ. और अभी एक प्ले भी कर रहा हूँ जिसका नाम है एक मुलाकात दीप्ति नवल जी के साथ, जो साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के एक अनरिक्वेटेड प्यार की कहानी है. Then there is another play that I'm doing. I'm planning something for television also. There is something that I'm doing for radio. तो जितने मीडियम हैं मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. एक छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें एक एक्टर ग्रीडी होता है और सब कुछ करना चाहता है. So I'm exploring all avenues. Short films, how do you see actually? What is the I think और लोगों को इनकरेज करना चाहिए. फीचर फिल्म्स तो लोग बहुत बनाते हैं, पर शॉर्ट फिल्म्स में एक बड़ी बात एक छोटे समय में और छोटी फिल्म के द्वारा आप कैसे कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले बहुत अच्छे शॉर्ट फिल्म मेकर्स थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स थे. वो इट्स अ डाइंग आर्ट. कहीं ना कहीं हर इंसान जो है बड़ी फिल्मों की तरफ, बड़े स्टार्स और ग्लैमर की तरफ भागता है. इस तरह का नेक काम और समाज को जगाने का काम शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए ये बहुत ज़रूरी है. तो मेरी लोगों से अपील भी है कि वो आगे आएँ, जो ख़ासतौर पर क्रिएटिव लोग हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और आगे आएंगे तो उनकी मदद के लिए लोग अपने आप सामने आएंगे और वो अपने मकसद में हमेशा कामयाब. Thank you. So, giving, what have you to say about this film, what you saw, and what's your reaction on this film? सबसे पहले तो जितने भी शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं ज़्यादातर इतने सेंसेशनल होते हैं, इतने सेंसेशनलाइज होते हैं उनके सब्जेक्ट्स. दे रियली डोंट टच ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट. It's all about a gimmick or some idea that can titillate. It's nice to see that this film was an attempt to deal with human emotions, and a beautiful emotion which has got to do with giving. शेखर साहब ने अभी जैसे आपसे कहा कि लोग तो लेते हैं, उनको देना सीखना चाहिए. यकीन के साथ मैं आपको कहता हूँ, आप चाहे इतना छोटा भी दें, और जब आप देते हैं, जो खुशी देने में होती है वो खुशी लेने में नहीं होती है. The very fact that this film has been produced by a new producer who has got nothing to do with the film industry is very commendable. It is very heartening to know that he took this attempt, and there were lots of people who were ready to back him up, and the final product was something that was fabulous. I wish them all the best, and I hope many such films will be made, not only as short films but as feature films also. I think मानते हैं कि कभी नेकी जो होती है या कोई अच्छा काम कभी खाली नहीं जाता. I mean, आज नहीं तो कल नहीं. देखिए, सबसे पहले तो ये जो ग्रीड है कि मैं अगर कुछ अच्छा करूं तो मुझे आगे जाके कुछ मिलना चाहिए. अगर हम इस थॉट से थोड़ा दूर होके बस दे दें, मैं मानता हूं कि आखिरत में अगर यहाँ नहीं मिले तो आखिरत में आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत मिलेगा. और कई How do you see a short film in these days actually? जहाँ पर एक लॉन्ग फीचर फिल्म बनती है, शॉर्ट फिल्म का कितना इम्पोर्टेंट है, क्या देखिए, फॉर अ न्यू प्रोड्यूसर टू एंटर द मार्केट, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मार्केट बन गया उसके लिए, जहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है. वो छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी एक पिक्चर बना सकता है, उसकी पहचान बन सकती है. वो अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में ले जा सकता है, जहाँ लोग उस पिक्चर को देखेंगे, उसे जज करेंगे, एंड मे बी बेस्ड ऑन दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल associating with him for his next project. So I think short film is one of it's a blessing in disguise for newcomers who want to become producers, directors, writers, actors. I think it's fabulous. What's happening with you actually with film? What about you? आपको क्या? फिलहाल मैंने अभी एक नया शो साइन किया स्टार प्लस के लिए. We are hoping to come on air very soon, I think this month. Please wait and watch. Thank you. Thank you. लेकिन How was your experience working on this film called The Joy of Giving? The Magic of Giving. It was actually magical to work in this film. बड़ा स्ट्रेंज सा था, मतलब जब हमारे पास कोई कॉल आता है और लोग पूछते हैं कि हम एक डायरेक्टर हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वही चलता है कि अरे यार एक और प्रोड्यूसर आया, एक और कहानी है. तो वी नॉर्मली से कि भैया अगर पसंद आएगा, इफ़ द स्टोरी इज़ गुड, लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज़ इन फॉर मी, पैसा वैसा क्या दोगे, कहानी कैसी है, रोल क्या है. प्रोड्यूसर डायरेक्टर केम टू बॉम्बे, नरेटेड मी द स्टोरी, और उससे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि ये पहली बार है जब वो इन्होंने कुछ लिखा है या
डायलॉग लिखे हैं, स्टोरी लिखी है और डायरेक्ट करना जा रहे हैं। इससे पहले वो बैंकिंग सेक्टर में थे, तो मुझे लगा यार क्या बनाएगा, क्या होगा, इतना सीरियस भी नहीं होगा। खैर वो आए, बॉम्बे आए, मुझे मिले, ही नरेटेड मी द स्टोरी, और स्टोरी पूरी ख़त्म होने के बाद मैं एक 30-40 सेकंड का पॉज था, एंड ही केप्ट लुकिंग एट मी कि क्या हुआ सर, मतलब आप करना नहीं चाह रहे क्या, आपको पसंद नहीं आई? और मुझे देखता रहा, मैंने कहा यार ये आपने वाकई में पहली बार लिखा है, ये पहली बार आपने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और आप इसे डायरेक्ट करने वाले हैं? कहता हाँ मैंने लिखा है। मैं आई वॉज टच्ड, ना सिर्फ इस चीज़ से कि एक इंसान जिसने पहले कभी कुछ लिखा नहीं, फिल्म लाइन से लेना देना नहीं, उसने इतनी अच्छी चीज़ लिखी कैसे, इतनी और इतनी एक स्क्रिप्ट में बैलेंस होता है, मतलब एक स्क्रीन प्ले होता है, हर चीज़ को बोलने का तरीका होता है, इतना परफेक्ट था हर जगह, बिल्कुल इतनी बैलेंस स्क्रिप्ट थी, और पहली बार किसी इंसान ने ऐसा लिखा है, मतलब मैं आई वाज टच, और जो उसकी एंडिंग है वो इतनी खूबसूरत है, मुझे छू गई। मैंने कहा यार आई एम ऑन फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस तरह मतलब शिरोज से मिलना हुआ और मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा, फिर धीरे धीरे उनके कैमरामैन आए, उनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए और बाकी सारे लोग आते रहे और इवेंचुअली फिल्म बनी। You are playing a rickshaw driver in the film. Yes. And you are playing in fact a good rickshaw driver in the film. Normally Yes. we have bad rickshaw drivers. So what do you have to say? नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका परसेप्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ऑटो में ट्रैवल करें तो आपको अच्छे रिक्शा ड्राइवर भी मिले, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मतलब मेरे अपने भाई की एक पूरी फाइल थी जिसमें उनके करियर की, ही इज़ इन मर्चेंट नेवी, उनके पूरे करियर के सर्टिफिकेट्स थे, कुछ पैसे थे और वो रिक्शा में रह गए। उस इंसान ने अगले दिन वो ला के दिए घर पे हमें, और मैं एक्चुअली मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि झूठी कहानियाँ हैं। मतलब मेरी मदर इतनी खुश हुई थी, वो आज भी लड़का हमारे टच में है, और उसे कि मुझे आप कुछ दीजिए मत, लेकिन मेरी हेल्प कीजिए, कहीं जॉब वॉब में प्लेस कीजिए। तो ऐसे रिक्शा वाले हैं, ऐसे ऑटो टैक्सी वाले हैं इस शहर में, बहुत हैं। When people look back your work maybe say 10-15 years down the line, do you think they'll remember this film as a second? लोगों से ज़्यादा मैं इस बात की गारंटी ज़रूर देता हूँ कि मेरे कुछ चुनिंदा अच्छे कामों में से दिस विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड वर्क्स, क्योंकि इसकी वजह एक तो सबसे पहले ये है कि स्टोरी मेरे बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरा ये कि मैं जो इसमें काम कर रहा हूँ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का, मुझे अमूमन लोग ऐसे रोल में लेते नहीं हैं कि यार बहुत रिच दिखता है, थोड़ा रईस आदमी या लड़का, या गरीब नहीं लगेगा, या मिडिल इस तरह का मतलब नहीं प्ले करवाते हैं, थोड़ा एटीट्यूड वाला, थोड़ा एरोगेंट इस तरह से रोल करवाते हैं। तो आई एम फर्स्ट प्लीज्ड कि मुझे शेरोज़ ने इस रोल के लिए सिलेक्ट किया, और जो मुझे रिएक्शन लोगों का मिला है और जो फेस्टिवल्स में हमें फीडबैक मिला है, आई थिंक मैंने अपना काम, इफ़ आई हैव टू वेट, वो 10 में से 8.5-9 तक तो है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ। सर जहाँ तक फिल्म की बात करें, जिस तरह से कैमरे का यूज़ किया है, डायरेक्शन का यूज़ किया है, आमतौर पर शॉर्ट फिल्म में देखा गया तो फर्स्ट में इतना कैमरा क्लियरिटी नहीं रहता, जिस तरह की फिल्म में दिखाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर? ऐसा है कि ये मैं समझ गया, ये ऐसा है कि कहने के लिए शॉर्ट फिल्म है, लेकिन इसका खर्चा बिल्कुल वैसे ही हो जैसे एक फीचर फिल्म का होता है। इसमें एक बहुत महंगा HD कैमरा शूट किया है, बहुत बड़े कैमरामैन हैं जिन्होंने इसका कैमरा दिया है, ये प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन में गई है, इसमें DI हुआ है, सराउंड साउंड हुआ है, डबिंग हुई है, कलर करेक्शन, CC CI, जिस तरह की प्रॉपर फिल्म में एक प्रोसेस से निकलती है, पूरी ये फिल्म वैसी उस प्रोसेस से निकली है। तो आप देखिए इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत इंटरनेशनल क्वालिटी की है। अब वो मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल पहले उस तरह की फिल्में होती थी कि ठीक है कैमरा लिया, शूट कर दिया 5D पे, आज भी बनती हैं, वो बुरी नहीं होती। लेकिन अब हम इतना शॉर्ट फिल्मों का एक ट्रेंड आ गया है हमारी कंट्री में, और सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इतना हो गया है, हमें फॉरेन की कंट्रीज की शॉर्ट फिल्मों से कॉम्पीट करना है, हमें उस लेवल का एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से अब जितनी भी फिल्में आ रही हैं, और जो मैंने ये की है और कपल ऑफ मोर शॉर्ट फिल्म्स आई हैव डन, वो सारी बहुत अच्छे लेवल पे शूट की गई है, बहुत अच्छा कैमरा यूज़ किया गया है, CAC हुआ है, कलर करेक्शन हुआ है, DI हुआ है, डबिंग हुआ है, सराउंड साउंड हुआ है, डॉल्बी किया है। तो अब इंटरनेशनली फिल्म जा रही है तो आपको क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। सर प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, कुछ आगे आने वाला प्रोजेक्ट कौन कौन से? कुछ शॉर्ट फिल्में हैं और 2-3 फिल्में हैं, वो भी जीत रही हैं अवार्ड्स इंटरनेशनली। नॉट द राइट टाइम मैं अभी उनके बारे में बोलूँ, आई स्पीक अबाउट देम वंस हम लोग को पता चला कि ठीक है अभी काफ़ी जगह जीत चुकी है। फ़िलहाल मैं एक स्टैंड अप शो कर रहा हूँ कॉमेडी का, इसको स्कैम बैम थैंक यू मैम, ये स्टेज पे मैं परफॉर्म करता हूँ, तो पिछले साल भर से उसी में थोड़ा बिजी हूँ। टेलीविज़न फ़िलहाल थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन टेलीविज़न से ब्रेक लिया हुआ है, स्टेज मेरा कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी शो के अलावा मैं शॉर्ट फिल्म में बहुत कर रहा हूँ इस वक्त। सर कैसा लगा फिल्म, शॉर्ट फिल्म देखा आपने, कैसा लगा, किस तरह का? ये मैजिक ऑफ गिविंग फिल्म देखी मैंने अभी, शॉर्ट फिल्म, जो कि
बहुत ही प्यारी फिल्म थी और मुद्दा भी बहुत ही करेक्ट था आज के दौर में, जब हम अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए और अपने खुद के कामों के लिए बहुत बिजी रहते हैं, और गिविंग जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यार आप अपने पास जो भी है शेयर करें, और सबसे पहले आप देना सीखें। आप देंगे तो आपको बहुत ऊपर वाला देगा। ये बहुत ही जानी पहचानी चीज़ है, लोग जानते हैं इसके बारे में, बोलते ज़रूर हैं लेकिन करता कोई नहीं है। तो ये फिल्म ने इसी चीज़ को एक बार फिर से याद दिलाया। तो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में बनती रही जिससे हमें ये बेसिक सी चीज़ याद रहे। जिस तरह से फिल्म में एक्शन कैमरे का यूज़ किया गया शॉर्ट फिल्म में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस कैमरा का? कैमरा जिससे क्वालिटी, जिस तरह से कैमरे का यूज़ किया गया, उसके लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई है। बाकी अगर टेक्निकल एस्पेक्ट फिल्म के मैं इतना जानकार नहीं हूँ कि कैमरा किस तरह यूज़ किया गया है या क्या चीज़ किस तरह की गई, लेकिन जो मुद्दा है फिल्म का, जो कोर है, जो हार्ट है, जो सोल है फिल्म की, सोल बहुत अच्छी है। और मेरे ख्याल से किसी भी फिल्म के लिए, और जब भी आप फिल्म को देखें तो मेरे ख्याल से उसको टुकड़ों में बांटना नहीं चाहिए कि आपने खाली कलाकार कैसे लगे या कैमरा कैसा लगा या लुक कैसा लगा या जगह कैसी थी, लोकेशन कैसी थी। आप ओवरऑल फिल्म को उसके सब्जेक्ट के लिए जज करें, और जो सब्जेक्ट था उसे बहुत प्यारे और अच्छी तरीके से हैंडल किया गया, और जो मैसेज वो देना चाहते थे बहुत क्लियरली दिया। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी सक्सेस और किसी फिल्म के लिए नहीं हो सकती।